guys, welcome to online sessions of Giri tutorial. Today we are going to start with method of capital account. Now see, capital is the amount which is brought by the partner in the business to manage business activity. So the company has to maintain capital account. Now partners maintain and operate some method of capital account. The two methods of capital account are discussed below. Amount in cash or kind brought in by partner to manage business activities termed as capital. सबको पता है पार्टनर जो बिजनेस में कैश लेकर आता है या किसी तरह का एसेट लेकर आता है बिजनेस में, इट इज termed as capital. पार्टनर मेंटेन एंड ऑपरेट सम मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट. तो पार्टनर जो पैसा लेकर आते हैं बिजनेस में, जो पार्टनर ने जो फंड्स बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसको शो करने के लिए कैपिटल अकाउंट मेंटेन किया जाता है. बेसिकली कैपिटल अकाउंट जो है वो लेजर अकाउंट है. तो टू मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट आर डिस्कस बिलो, फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फिक्स्ड कैपिटल मेथड, सी इफ you are using this fixed capital method, you have to maintain two accounts, capital account and current account. Capital account, the amount will not change. यहाँ पे जो amount है, जो capital amount है, जो balance है, it is not going to change unless there is some addition. Unless the partner have brought some additional capital, and all the other transactions will be shown in current account. Now, other one is fluctuating method, capital method. There we have to maintain capital account. First, we will start with fixed capital method. In this method, amount of capital of a partner remain the same at the end of the financial year. There is no addition or subtraction from the capital during the year. When this method is adopted, partner open a new account in the name of partner's current account, and all the related to capital adjustment are solved through partner's current account. For example, drawing, interest on drawing, interest on capital, partner's salary, commission, brokerage, share of profit and loss are recorded in current account. See, ये जो fixed capital method use होता है, तो ये जो fixed capital method use होता है, तो जो partner's capital account है, it remains same at the end of financial year. वहाँ पे कोई addition, कोई subtraction नहीं होता unless and until an additional capital is brought by the partner during the year. तो ये जो है, ये इसका जो amount है वो same रहता है. जैसे आपने ये जिसे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, इसका जो बैलेंस बीडी है एंड उसके बाद उसका बैलेंस जो है वो हमेशा सेम रहता है. और जो भी एडिशनल जो भी ट्रांजेक्शन है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, interest on capital, partner salary, share of profit and losses, that for that they have to maintain another account, that is current account. With pro forma of fixed capital method, partner's capital method. यहाँ पे पार्टनर जो पैसा लेकर आता है बिजनेस में, that is shown on the credit side. इसका जर्नल एंट्री देखो. When additional capital is introduced by पार्टनर जब एडिशनल कैपिटल लेता है तो जनरल एंट्री इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश एंड बैंक. सी ये अकाउंट मेंटेन होता है ताकि पार्टनर्स ने, इट इज अ काइंड ऑफ लायबिलिटी, जो पार्टनर ने पैसा, लायबिलिटी है ये, जो पार्टनर ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, जो पार्टनर ने पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है यहाँ पे. तो ये जो अमाउंट है, द बैलेंस बीडी, वो पार्टनर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द बिजनेस. अभी जब वो एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो एंट्री इज कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. पार्टनर्स अगर एडिशनल कैपिटल लेकर आया है, असेट लेकर आता है, तो वो सब क्रेडिट होता है. नेक्स्ट इज व्हेन कैपिटल अमाउंट इज ब्रॉट इन बाय पार्टनर इन फॉर्म ऑफ असेट, तो असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सी जनरल एंट्री जो है बहुत सिंपल है. जनरल एंट्री के बेसिस पे you have to do the posting. Then additional capital is introduced by partner. So अभी capital, additional capital, cash है, cash लेकर आ रहा है पार्टनर. कैश की जो एंट्री सबसे सिंपल है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो अमाउंट विल बी शोन ऑन क्रेडिट साइड. नेक्स्ट है व्हेन कैपिटल
अमाउंट इज ब्रॉट इन बाय पार्टनर इन फॉर्म ऑफ एसेट। अभी पार्टनर जो है कैश नहीं लाया, एसेट लेकर आया, तो एंट्री क्या होगी, कैश की जगह एसेट हो जाएगा, एसेट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यू कैन सी इन द प्रोफार्मा, आप जो सामने जो प्रोफार्मा है उसमें आप देख सकते हो। नेक्स्ट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। When fixed capital method is adopted by partnership firm, a new separate account is opened, that is partners current account. In this account, all adjustments related to capital are recorded. Partners current account will show debit or credit balance. Partner का जो current account है ये पॉजिटिव बैलेंस नेगेटिव बैलेंस भी शो करता है। फर्स्ट वन इज ड्रॉइंग मेड बाय पार्टनर इन करंट अकाउंटिंग ईयर। अगर जो पार्टनर है उसने पैसा विड्रॉ किया है बिजनेस से, तो इट हैज टू बी शोन इन करंट अकाउंट। अभी जैसे फिक्स कैपिटल अकाउंट में कोई चेंजेस नहीं होगा, तो उससे जो रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है वो करंट अकाउंट में आपको शो करना है। नेक्स्ट है गुड्स और एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। अभी कोई गुड्स है, एसेट है, अगर पार्टनर लेकर जा रहा है तो वो पार्टनर करंट अकाउंट में आएगा। सी, जब पार्टनर एसेट लेकर आता है तो वो क्रेडिट साइड में आपने शो किया है, एंड जब वो बिजनेस से एसेट कोई लेकर जा रहा है, वो बिजनेस से एसेट अपना निकाल रहा है, so that will be shown on debit side. Interest on partners capital allowed by the firm. अभी जैसे मैंने बताया कि पार्टनर ने जो पैसा बिजनेस में लेकर आया है, इट इज काइंड ऑफ लाइबिलिटी। भले ही वो पार्टनर का पैसा है, पार्टनर ओनर है, बट वो एक काइंड ऑफ लाइबिलिटी है किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर। तो अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स अगर पे हो रहा है तो उसका जो ट्रांजेक्शन है इट विल बी शोन इन पार्टनर्स करंट अकाउंट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग चार्ज बाय द फर्म। अब पार्टनर ने जो पैसा लेकर आया है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो रहेगा दैट विल बी शोन ऑन इन द क्रेडिट साइड, वो क्रेडिट साइड में दिखाएगा। बट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग चार्ज बाय फर्म, ड्रॉइंग अमाउंट जो है वो डेबिट में आएगा, एंड जो इंटरेस्ट उस पर चार्ज होता है वो भी डेबिट में आएगा। नेक्स्ट इज सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर। जो पार्टनर है वो कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है, उसके लिए उसको वो सैलरी, उसको कमीशन मिल रहा है, that will be shown in the credit side of current account. Next is distribution of profit and loss. Now next you can see the performance of partners current account. जिससे मैंने बोला by balance BD credit balance, यहाँ पे current account जो है इसका बैलेंस क्रेडिट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अगर डेबिट बैलेंस है तो मतलब वो नेगेटिव बैलेंस है। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर ने जो पैसा बिजनेस में लगाया है तो कैपिटल है, पार्टनर इज लायबल टू गेट इंटरेस्ट ऑन इट, उस पे पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो दैट विल बी शोन ऑन दी क्रेडिट साइड, वो क्रेडिट साइड में आएगा। फर्स्ट है, फर्स्ट एंट्री देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स को जो जो पैसे मिलेंगे बिजनेस से, पार्टनर को जो जो पैसे बिजनेस से मिल रहे हैं दैट विल बी शोन ऑन दी क्रेडिट साइड, और जो पैसे पार्टनर ने बिजनेस से निकाला है, पार्टनर को बिजनेस को पे करना है, जब पार्टनर को लॉस हो रहा है दैट विल बी शोन ऑन डेबिट साइड। एज सिंपल एज दैट। सी फर्स्ट जर्नल एंट्री, इंटरेस्ट अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। पहला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है उसके पैसों के लिए, पार्टनर ने जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसके लिए उसे पैसे मिल रहे हैं, तो वो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी शोन ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप देखो क्रेडिट साइड है, जो जो पैसे पार्टनर को मिलेंगे वो सब क्रेडिट में आएगा। इसका जो नेक्स्ट एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी पार्टनर को आप सैलरी दे रहे हो, पार्टनर को आप कमीशन दे रहे हो, तो ये पार्टनर का गेन है, ये क्रेडिट साइड में आएगा, राइट। बट द सेम थिंग इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी। ये जो अमाउंट है जो आप पार्टनर को पे कर रहे हो, अभी फॉर एग्जांपल जो पार्टनर है वो कंपनी में एक्स्ट्रा काम कर रहा है तो उसको हम सैलरी दे रहे हैं, उसको हम कमीशन दे रहे हैं, तो ये उसके पार्टनर के लिए ये इनकम है, तो ये क्रेडिट साइड में शो हो रहा है पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट में, इट इज शोन ऑन द क्रेडिट साइड। बट फॉर द कंपनी इट इज एन एक्सपेंस, कंपनी के लिए ये एक तरह का एक्सपेंस है। तो यहाँ पे जो सेकेंड एंट्री है वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नरेशन इज बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। भी नेक्स्ट देखो, सैलरी और कमीशन अलाउड टू पार्टनर। जैसे इंटरेस्ट अपने कैपिटल पे पार्टनर को इंटरेस्ट दिया है तो वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है,
वैसे सैलरी आप पार्टनर को आप सैलरी पे कर रहे हो, कमीशन पे कर रहे हो, तो वो पार्टनर का गेन है, बट फॉर कंपनी इट इज एन एक्सपेंस। तो उसकी जनरल एंट्री कैसी है? सैलरी और कमीशन इन पार्टनर्स अकाउंट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, being salary or commission due for payment. Next is P&L account to salary account, being salary commission transfer to profit and loss account. वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पे डेबिट साइड वो शो होगा बिकॉज इट इज एन एक्सपेंस फॉर द कंपनी. नेक्स्ट इज कैश और गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज. कैश और गुड्स टेकन ओवर बाय द पार्टनर फॉर देयर पर्सनल यूज. अभी जैसे मैंने आपको बताया है, जो भी चीजें पार्टनर बिजनेस में लेकर आ रहा है वो सब क्रेडिट साइड में शो होता है. जो पार्टनर को मिल रहा है वो भी क्रेडिट में आता है, बट जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है वो सब कहाँ जाएगा? डेबिट साइड में जाएगा. तो उसका एंट्री इज ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश और गुड्स अकाउंट, बीइंग कैश और गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. पार्टनर ने कैश गुड्स पर्सनल यूज के लिए क्या किया है? बिजनेस से विड्रॉ किया. नेक्स्ट इज पार्टनर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग. अभी जब आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा तो उसमें डेबिट साइड में पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है इट विल बी डेबिटेड टू ड्रॉइंग अकाउंट. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्रॉइंग. एंड नेक्स्ट एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू P&L अकाउंट. अभी देखो ये बहुत सिंपल है. अगर मैंने जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर पार्टनर कोई चीज बिजनेस से विड्रॉ कर रहा है, चाहे वो कैश हो, तो दैट विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट, राइट? वो डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट में शो करेगा. अगर पार्टनर ने बिजनेस से पैसे निकाले, पैसे विड्रॉ किए एंड पार्टनर को उस पर इंटरेस्ट पे करना है, तो दैट विल ऑल्सो बी शोन ऑन दी डेबिट साइड. और उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा P&L अकाउंट में क्रेडिट साइड. बिकॉज बिजनेस, अगर पार्टनर ने बिजनेस से पैसे बोरो किए हैं, आपके बिजनेस से पार्टनर ने पैसे निकाले हैं एंड पार्टनर इज पेइंग इंटरेस्ट टू द बिजनेस, तो ये बिजनेस के लिए क्या है? एक तरह का गेन है. तो दैट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट. और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस पार्टनर्स करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट, बीइंग लॉस एडजस्टेड टू पार्टनर करंट अकाउंट. अब देखो यहाँ नेक्स्ट नीचे जो परफॉर्मा दिया है उसमें देखो इफेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जो भी यहाँ के जो एडजस्टमेंट्स है, जो भी ट्रांजेक्शन है, उसके इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैसे होता है? तो मैंने आपको बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कंपनी पार्टनर को जब पे कर रही है तो पार्टनर के लिए इट इज अ गेन, वो क्रेडिट साइड में आएगा, बट कंपनी के लिए वो क्या है? एक तरह का एक्सपेंस है, तो वो P&L के डेबिट साइड में आएगा. नेक्स्ट इज सैलरी टू पार्टनर. अभी कंपनी अगर पार्टनर को सैलरी पे कर रही है तो पार्टनर का गेन है, पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, बट फॉर कंपनी वो क्या है? एक्सपेंस है, तो वो डेबिट में शो होगा P&L अकाउंट में. सेम है कमीशन टू पार्टनर. पार्टनर को कंपनी कमीशन पे कर रही है, पार्टनर का गेन है, बट कंपनी के लिए ये एक तरह का एक्सपेंस है. अभी नेक्स्ट में आप देखो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. पार्टनर जो है उसने बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए, अब वो उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, तो वो कंपनी के लिए एक तरह का गेन है, तो वो इट विल बी शोन ऑन दी क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट. गेन है इन सेंस वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कंपनी को वो मिल रहा है. पार्टनर ने बिजनेस से पैसे निकाले हैं, तो उसके ऊपर पार्टनर क्या दे रहा है? इंटरेस्ट दे रहा है, तो वो इंटरेस्ट जो है वो कंपनी के P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड में वो शो होगा. नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. इन दिस मेथड अमाउंट ऑफ कैपिटल बैलेंस चेंजेस एवरी ईयर. It is called as fluctuating capital method. In this method, the partner current account is not opened. Hence, all adjustments are solved through capital account. Following are the general adjustment related to capital. अभी ये जो fluctuating capital method है, यहाँ पे जो पार्टनर का कैपिटल है वो क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है, वो चेंज होता है. बाकी सारी जो भी एक्टिविटी, बाकी सारी जो भी एडजस्टमेंट होती है उसका इफेक्ट उसके कैपिटल पे पड़ता है. जैसे
पहला है देखो इनिशियल और ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस है, एंड उसके बाद एडिशनल कैपिटल जब वो लेकर आ रहा है तो बाय कैश अकाउंट एडिशनल मेथड। नेक्स्ट है जैसे मैंने आपको बताया सैलरी, अगर कंपनी सैलरी पे कर रही है पार्टनर को तो पार्टनर के लिए वो क्या है, इनकम है, मतलब पार्टनर को वो मिल रहा है, तो जो जो चीजें पार्टनर को मिलती है जो बिजनेस में लेकर आता है वो सब क्रेडिट में आता है। तो बाय इंटरेस्ट, बाय सैलरी कमीशन पेबल टू पार्टनर, बाय सैलरीज आएगा, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। नेक्स्ट है अगर वो बिजनेस से कुछ विड्रॉ कर रहा है तो वो डेबिट साइड होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो भी डेबिट साइड रहेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस, अगर लॉस है, अगर पीएनएल में लॉस हुआ है तो वो डेबिट साइड शो होगा। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, यहाँ पे जो कैपिटल है वो क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है। यहाँ पे करंट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस दिया भी है तो वो एज इट इज वो शो होता है, एज इट इज वो एसेट में शो हो जाता है। नेक्स्ट इज, so with this, see today I have made it very clear fixed capital account and fluctuating capital account. Fixed capital account अगर आप maintain कर रहे हो तो you have to maintain two accounts, that is fixed capital account and other one is current account, partners current account, so that all the appropriation will be shown in the partners current account. But अगर आपका fluctuating capital method है तो यहाँ पे आपको करंट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है, वो सारा चीज आपको यहीं पे शो होगा। तो बहुत बहुत सिंपल है। यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू कैपिटल, फॉर एग्जांपल पार्टनर, ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पार्टनर अगर एक्स्ट्रा पैसा लेकर आ रहा है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, पार्टनर्स को कमीशन मिल रहा है, तो एवरीथिंग इज शोन इन दिस लेजर अकाउंट, ये यहीं पे शो हो रहा है। और जो दूसरा मेथड है वहां पे जो फिक्स कैपिटल मेथड है वहां पे आपको एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, एंड सेकंड जो बाकी सारी एडजस्टमेंट, जो बाकी सारा जो चेंजेस, जो कैपिटल प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन है उसके लिए आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। होप थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू and I tried my best to make it very simple. इसके बाद की जो भी प्रॉब्लम्स है, इलस्ट्रेशंस है, I want you all to solve it. It is already given in your book, तो आप उसको देख के आप सॉल्व करो। And with this I would like to end my session. Thank you.